Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will be starting chapter 4 of civics of standard 7, growing up as boys and girls. So from the title itself you can understand that in this lesson we are going to get some information about the different two genders, means male and females. So about their roles and about the discrimination prevailed in the society and all this relevant information we are going to see in this particular video. So please watch this video carefully till end, because whatever the extra questionnaires are there, those all will be discussed definitely during the video itself. So it can be easier for you to identify the answers of different questions from your own, and that's why it is mandatory for all to go through the textbook also very carefully. Means please read your entire lesson very carefully. Now let us have a look over these different pictures. You can find here different pictures, like here you can see a broom, also you can see a helmet, also like this pant, and also you can find a doll. So there are a number of pictures given here. Means you can identify from these pictures that these belong to a boy or a girl. So in that sense the society has divided the things between two genders, that is male and female. So that's what we are going to see, that there hasn't to be any kind of discrimination as by the guidelines of the constitution. That also we are going to see in the upcoming video, means by the next part of this lesson. So first you can find after the title, being a boy or a girl is an important part of one's identity. So at least you can understand that what is the important part of one's identity, that is being a boy or a girl is an important part of one's identity. Second, also you can find this highlighted part, that is also a question, that what does the society we grow up in teach us. So what does the society teaches? So what it teaches us, it teaches us that what kind of behavior is acceptable for girls and boys. Means from the society, from our surroundings, we come to know that what is the role for the girls and what is the role for the boys. So from the surrounding environment only we come to know about this. Means indirectly the society teaches us that what we should do and what even we cannot do. Means what the boys and girls can or cannot do. We often grow thinking that these things are exactly the same everywhere. So whether it is same everywhere or not, that we are going to discuss very soon. तो हर जगह ये चीज़ें शायद सेम नहीं होती है. सो हमारे पास सवाल भी है, बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे. क्या हर जगह ऐसा है पूरी दुनिया में? सो वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर. हम इसी चैप्टर में ये देखने वाले हैं. वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. सो जो बचपन से रोल दिए जाते हैं वही आगे चल के जो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे विल बी द फ्यूचर मैन एंड वीमेन एंड इट विल डिसाइड देयर रोल. एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वीमेन डिफरेंटली. हम ये भी देखने वाले हैं द रोल्स वीमेन प्ले एंड द वर्क दे डू, इट इज़ लेस वैल्यूड. तो उनका किया गया काम शायद ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है, ना ही उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट या स्टेटस भी दिया जाता है. सो दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वीमेन. सो किस तरह का इनइक्वालिटी हमें देखने मिलता है, ये हम इसी चैप्टर में जानने वाले हैं. सो सबसे पहले वी हैव अ केस स्टडी ऑफ आइलैंड ऑफ सामोआ. सो यहाँ पे आपको टाइटल दिया है ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920s. सो इट्स जस्ट लाइक द केस स्टडी, मीन्स आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है अबाउट ऑफ 1920s. तो पहला आपको सवाल बनता है कि वेयर इज़ दिस सामोआ आइलैंड्स. तो ये आइलैंड्स कहाँ है? दीज आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन. ओके, अगर आपको बताया जाए कि राइट इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन इन सामोआ. सो ये अब आपको आगे की बात है थोड़ा और, कि उन्हें किस तरह का जीवन यहाँ बच्चों का पाया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट्स
on Samoan society, children didn't go to school because we are discussing about the 1920s. आज शायद सीन और हो सकता है. They learned to take care of children और do household work. तो ये वो अपने आप सीख लेते थे from older children. फिशिंग जो कि उस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी और इसी वजह से यंग पीपल लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस. और ये लोग फिशिंग के लिए जाया करते थे, बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. यानी बचपन पे ही ये सब चीज़ें सीख जाते थे. इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द क्वेश्चन राइट इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ, तो आपको केवल जितना यहाँ से अकॉर्डिंग टू से दिखता है, जितना हिस्सा हाईलाइटेड है, सिर्फ वही मेंशन करना ज़रूरी है. ज़्यादा चीज़ें नेसेसरी नहीं है. अब अगर हम उसके बारे में थोड़ा और ब्रीफ में बात करें कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, उसके पहले आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं. यू कैन फाइंड अ समवन चाइल्ड ऑफ 7th स्टैंडर्ड जो उसके स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहा है. वैसे आपने ऊपर देखा कि बच्चे उस वक्त ज़्यादातर स्कूल नहीं जाया करते थे. सो एज सुन एज babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. यानी उसी उम्र से ज़्यादा अब उनको केयर नहीं किया जाएगा. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. So only a 5 years of age child would take the responsibility of another younger child. Both boys and girls looked after their younger siblings, यानी brothers and sisters. But by the time a boy was about 9 years old, तकरीबन अगर लड़के की उम्र 9 साल होने पे he would join outdoor jobs. तो अब वो बाहर के कामकाज संभालना शुरू करेगा, सीखना शुरू करेगा, जैसे कि फिशिंग हो सकता है, प्लांटिंग कोकोनट्स हो सकता है, वगैरह वगैरह. एंड गर्ल्स घर पे ही छोटे बच्चों को संभालेगी या उनके पेरेंट्स को, जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनकी मदद करेगी जब तक वो टीनेज की नहीं हो जाती. पर जब वो टीनेज की हो जाएगी, बट व्हेन दे विल बिकम ऑफ टीनेजर्स, दे हैड मच मोर फ्रीडम. एंड आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन दी प्लांटेशंस एंड लर्नड हाउ टू वीव बास्केट्स. तो धीरे धीरे अब लड़कियां भी ये सब काम सीखने लगेगी, बट आफ्टर द एज ऑफ 14. ओके, सो टीन एज होने पे वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेती है और 14 के बाद उन्हें और फ्रीडम भी मिल जाती है. और इसी तरह से जब लड़कियां ये सब काम करती है, जैसे कि कुकिंग अगर हम बात करें, तो कुकिंग वॉज डन इन अ स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस. तो यहाँ आप समझ सकते हैं डिफरेंस है कि बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ दी वर्क. ये कुकिंग हाउसेस में ज़्यादातर काम तो लड़के ही संभालते थे, पर लड़कियां उन्हें सिर्फ मदद करेगी उनकी प्रिपरेशन के लिए. हमारे पास दूसरा 1960 का एक एग्ज़ाम्पल भी है, जैसा आप देख सकते हैं कि ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश. ये एक पर्टिकुलर अकाउंट लिया गया है फ्रॉम अ रियल लाइफ पर्सन, बराबर है. तो वहीं से वो अपनी बात करते हैं फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s कि बच्चे का लाइफ क्या रहता है, क्योंकि बचपन में लड़का लड़की जो सीखते हैं वही आगे जाके दे आर गोइंग टू बी मैन एंड द वीमेन ऑफ दिस सोसाइटी. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है उन्हें सोसाइटी का. सो फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स. तो ये 1960s की हम बात कर रहे हैं. द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड very differently from the boys school. They had a central courtyard where they played in total seclusion. यानी उनके लिए एक सेपरेट कोर्टयार्ड रहेगा जो स्कूल के बिल्डिंग के इस तरह अंदर रहेगा. ओके, यानी कि वहाँ कोई और दखल अंदाजी नहीं रहेगी, बाहर के वर्ड से पूरा सेफ्टी मिलेगा. द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड. यहाँ ये नहीं था. तो ये बंदा कहता है कि आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल. तो स्कूल के पास ही में एक ऐसा प्लेग्राउंड था और वहीं पे उन्हें खेल कूद का मौका मिलता था. एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर द बॉयज़ वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स. यानी सैकड़ों की तादाद में लड़कियां जब घर जाती थी, पर लड़कियों के लिए क्या होता है, फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम.
यानी आई वॉन्ट टू से दैट वो सीधी अपने घर पे जाएगी। पर अगर हम उल्टा चीज़ यहाँ पे लड़कों का अगर बात करें, बट दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़। तो लड़के कैसे करते थे, तो हु यूज्ड द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग। तो वहाँ सिंपली खड़े रहते थे, बराबर है, ट्रिक्स अपनी बाइसिकल के साथ करेंगे और ये सब मौज मस्ती करेंगे। पर फॉर द गर्ल्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल। तो गर्ल्स के लिए इट वॉज़ वेरी पर्पसफुल, क्योंकि घर जाना है तो स्ट्रीट से होके जाना है, इसीलिए वो स्ट्रीट से गुजर जाती थी। पर लड़के वहाँ टंगे रहते थे, दैट इट वॉन्ट्स टू से। ओके, सो दे वर जस्ट स्टैंड आइडलिंग। आफ्टर रीडिंग दिस टू एग्जाम्पल्स अबव, यानी एक हमारे पास सामोआ का एग्जाम्पल है एंड दूसरा हमारे पास मध्य प्रदेश का है। सो दस वी हैव दिस टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इन दोनों से हम ये समझ सकते हैं कि देर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, जबकि वी थिंक दैट देर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, पर यह होता नहीं है। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम हमारा ही बचपन देखते हैं, यानी हमारा देखेंगे, हमारे आसपास के छोटे बड़े भाई बहन का देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं देखते हैं। पर यही सवाल अगर आप आपके एल्डर्स से पूछेंगे इन योर फैमिली इटसेल्फ, तो आप जानेंगे कि आपके बचपन से उनका बचपन कितना अलग था। मीन्स यू शुड आस्क योर पेरेंट्स और इवन ग्रैंड पेरेंट्स, यू विल फाइंड दैट दे हैड इवन डिफरेंट गेम्स टू प्ले। काफ़ी तरह से उनका बचपन भी अलग था। यहाँ आपको फिर से क्वेश्चन दिखाई देगा कि हाउ डज़ द सोसाइटी मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द जेंडर्स। तो किस तरह से यहाँ बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़ कोई डिस्टिंक्शन सोसाइटी में है कि नहीं है। तो ये इतना लंबा आंसर नहीं है। यहाँ ऊपर ये 4 लाइन यू शुड राइट एटलीस्ट, और जो नीचे यहाँ आपको फिर से 5-6 लाइनें दिख रही है, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। तो इतना ही, दिस इज़ द हार्ट ऑफ द पैराग्राफ। सो हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्योंकि ये बहुत ही यंग एज से शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है दैट वी आर फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विथ, यानी बच्चों को भी अलग अलग किस्म के खिलौने दिए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि बॉयज़ आर गिवन कार्स टू प्ले विथ एंड गर्ल्स आर गिवन डॉल्स। बोथ टॉयज़ हैव अ लॉट ऑफ फन देखा जाए तो। पर फिर भी क्यों लड़कियों को डॉल्स दिए जाते हैं और लड़कों को कार? टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स। तो यही खिलौने दिखा देते हैं कि आगे चल के उनका फ्यूचर भी अलग है, जब वो मैन और वीमेन बनेंगे इस सोसाइटी के। एंड इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। तब ये जाके बहुत ही रोज़ाना आम बात बन जाती है। इसीलिए यहाँ आगे आपका आंसर दिया है कि हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ। तो ये भी रोल डिसाइड किया जाता ही है सोसाइटी से कि लड़कियों को सॉफ्टली ही बात करना है, बॉयज़ हैव टू बी टफ क्योंकि उन्हें बाहर काम करना है वगैरह वगैरह। किस तरह का लड़कियों को पहनावा होना चाहिए, कौन से गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, दिस ऑल थिंग्स अल्टीमेटली लीड अस टू द डिस्टिंक्शन। वी कैन से दैट देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। यहाँ आपको डिस्टिंक्शन देखने मिलेगा ही, एक डिफरेंस देखने मिलेगा, क्योंकि ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन that they have specific roles to play when they grow up to be men and women, and later in life this affects the subjects we can study or the careers we can choose। और उन्हीं के आधार पे बच्चे आगे अपनी पढ़ाई करेंगे या अपना करियर पसंद करेंगे। यहाँ आप एक और बात देख सकते हैं, मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि इज़ देयर एन इक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स। सो क्या सच में आपको इक्वालिटी दिखती है? तो आप देख सकते हैं इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मैन एंड वीमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली, कि इन्हें इक्वालिटी नहीं दी गई है। मैन एंड वीमेन ऑल्सो हैव नॉट द सेम स्टेटस, और उसी के लिए हमारे पास जो डिफरेंस यहाँ होता है क्रिएट, बराबर है, बाय मैन एंड वीमेन जो काम करते हैं, वही प्रूव करता है दैट देयर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन द वर्क।
सो यहाँ से आपका एक कहानी शुरू होता है, माई मदर डज नॉट वर्क। सो टिल दैट टाइम प्लीज़ रीड द लेसन। यहाँ तक का लेसन रीड कर लीजिए, हो सके तो पूरा लेसन एक बार रीड कर लीजिए। आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं, एंड ऑल्सो आई हैव रिपीटेड ऑल द आंसर्स। For any query you can ask in comment. Okay, till then keep reading, keep learning. Thank you.